cadmium. So these are the elements. I'm writing this electronic combustion. outermost electronic 4d series की बात हो रही है यहाँ पे 4d series. पहले हम यहाँ पे 4d series लिखेंगे. These all elements are in the 4d series elements. 4d series की बात. Then what are 4d 3d 4d 5 years. This is what 5 years. This is what 5 years. This is what 5 years. Again यहाँ पे पूरा element 5 years की बात हो रहे हैं. So 5 years again the 5 years elements. Here also this is the 5 years. This is also this 4d. Again writing this are 4d and this one is the 5 years. 4d again here 5 years. 4d 5 years. Then we are having this is the यहाँ पे हमको क्या करना है इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है. So that is how one यहाँ पे completely fulfilled है. completely यस ऑर्बिट क्या है फुलफिल्ड है. यस ऑर्बिट हमने यहाँ पे फुलफिल्ड लिख दिया. याद रखना है एक एलिमेंट दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ चौथा. अब यहाँ पे क्या होगा सो दैट इज द नेक्स्ट सिमिलर टू 5 एंड दिस इज 1. अगेन दिस इज ऑफ 5 एलिमेंट्स 5 इलेक्ट्रॉन्स सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे देखो ये हमको यहाँ पे करना है Pg1 और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स. So that is how this electronic configuration of यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन कैसे यहाँ पे पैलेडियम को कभी कभी यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0 दिखाया है ना. यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 बताया है. So that is again what this electronic configuration यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल है दोनों का पैलेडियम और सिल्वर का. So that is what outermost electronic configuration of what 4d series. अब बात करेंगे 5d series की. What is the outermost electronic configuration of 5d series? I'm writing this word lehopro hopmium. तवा आरे अस्की persona hungarica है. These are the elements for the 5d series. Again I'm writing this electronic configuration. Again what 5d. यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे पहला 5d series लिखेंगे. These are the 5d series elements. Are the 5d series elements. All are the 10 elements that is belonging to the d block elements. Yeah, the 5d we have 5d 6 years. Writing this is 5d and one is another electrons is again what s orbit is completely fulfilled. Here the s orbit is completely fulfilled. Again what this is according to what a part of s and d orbit. यहाँ पे 6 years electrons 6 years. So I'm writing here this is electronic configuration filling of electronic configuration one by one. Here 2 electrons. Again we are having this is the s orbit are completely fulfilled just like to the 3d and 4d. So I'm writing this is one by one electron is participate. 1 electron 2 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10. अब यहाँ पे लिखना है ये जो है एज है यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे आएगा 10. So this is one of the exception for the platinum also. And this is writing this is 9. This one is 1. Writing this is 1 or 10. This is also we are writing this is a 0 and 10 is also. So that is again what from the fourth number lanthanum hafnium tantalum tungsten. This tungsten 1 electrons enter from the s to d orbit. Again यहाँ पे 5 electrons यहाँ पे 1 electron. So here these are the electronic configuration of again 5d series 3d series 4d series and 5d series. So these are the 3 series we have been explained with atomic number electronic configuration. अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं property. It is most important. I'm going for this is properties of the elements. देखो हमारे पास chromium है. These are the chromium. Again these are the molybdenum and these are the tungsten. Periodic d block element में हमने इस यहाँ पे एक कंसेप्ट मैंने बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट की हम पहले बात करेंगे. ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है. अब यहाँ पे बात करेंगे जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी. जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी ये जो 3 एलिमेंट है जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी ये जो 3 एलिमेंट्स है ये 3 एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते. ये 3 एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता. इसका मीनिंग क्या है इसका रीजन क्या है. So first you should know that
what is the d block element, what is the d orbital, what is the d block element. d block element मतलब क्या कि d ऑर्बिट में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. किसके लिए होना चाहिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का पर्पस क्या होता है ये प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा. देखो हमारे पास सपोज यहाँ पे इट्रियम और जिर्कोनियम था. सो दैट इज फॉर द 3D सीरीज एंड दिस वन इज द 4D सीरीज. यहाँ पे मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे सपोज ऑर्बिट में हमारे पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन. डी ऑर्बिट में हमारे पास सपोज सिंगल इलेक्ट्रॉन है. जैसे हम सनलाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, whenever we have the bombardment of the incident of the any source of the light or the energy on the parts of this the compound. For example हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं. हमारे पास सपोज पोटेशियम डाइक्रोमेट है. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. K2Cr2O7 ये हमारे पास केमिकल्स है, ये हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसके ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं? एनर्जी सोर्स को इंसिडेंट करना चाह रहे हैं. देखो फॉर एग्जांपल इसका कलर व्हाइट था. जब हमने एनर्जी को इंसिडेंट किया, यहाँ पे एनर्जी मतलब उसने क्या किया? अब्जॉर्प्शन किया. इसका व्हाइट कलर था. आफ्टर सम टाइम्स जैसे ही उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की फ्रॉम सनलाइट और व्हाटएवर में भी एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद व्हाइट कलर था, तो उसका रेड कलर होगा या ब्लैक कलर होगा. सो व्हाई दिस इज हैपन? दिस इज हैपनिंग ड्यू टू व्हाट? presence of d orbit electrons, number of unpair of electrons, presence of number of unpair of electrons. मतलब d orbit में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तभी वो क्या करेंगे? ऑर्बिट मतलब उस ऑर्बिट में जब क्रोमियम की बात करेंगे तो उसके ऑर्बिट में लास्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा. मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग होगा. इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पे. यहाँ पे देखो ये पेयरिंग करने की कोशिश करेगा. पेयरिंग कब होगा? जब एनर्जी इंसिडेंट करने के बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन था, पेयर हुआ, अनपेयर का पेयर हुआ. अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, उसका पेयर हुआ. तो ये कंसेप्ट होना, ये प्रोसेस होना कब पॉसिबल है? जब डी ऑर्बिट में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जब डी ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तभी वो क्या करेंगे? एनर्जी सोर्स अब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा. क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन. अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना मतलब क्या? जंप होना, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना. अब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? अनपेयर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ. अब ये पेयरिंग होना किस ऑर्बिट की खासियत है? तो डी ऑर्बिट में जब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, तब और तभी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा. ट्रांजिशन होने के बाद, क्या कहा मैंने? ट्रांजिशन होने के बाद. तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आती है ट्रांजिशन की. तो इसीलिए ये जो ऑर्बिट है स्कैंडियम से लेके कॉपर तक, इट्रियम से लेके एजी तक, लैंथेनम से लेके एयू तक, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. क्यों? क्योंकि उसके डी ऑर्बिट में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में ऐसा नहीं होता. क्यों? देखो यहाँ पे जिंक की बात करेंगे, डी में कंप्लीटली फुलफिल्ड है, और कैडमियम की बात करेंगे, डी भी कंप्लीटली फुलफिल्ड है. मर्क्यूरी की बात करेंगे, डी भी कंप्लीटली फुलफिल्ड है. आप बोलेंगे सर यहाँ पे डी में 10 है ना, एजी में भी 10 है, ईयू में 10 है, लेकिन यहाँ पे यस ऑर्बिट अनपेयर है, यस में अनपेयर ऑफ है. डी में क्या किया? स्टेबल होने के लिए ये प्रैक्टिकली यहाँ पे हमने ऑब्जर्व, थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन इसके अलग अलग है, लेकिन ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी. सो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. कैडमियम, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट
transition element because of in those elements which contain the completely full field of electrons, this is nothing but last subset. D orbit contain pair of electron, not unpair of electron. This contain what? Pair of electron. Pair of electron होने की वजह से, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सेंस होने की वजह से, कंप्लीटली फुलफिल ऑफ डी ऑर्बिट होने की वजह से ये ट्रांजिशन नहीं बताएंगे. दैट्स व्हाई जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. अब देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट की हम यहाँ पे बात करेंगे. इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट है कि इसका सबसे ज्यादा लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट सबसेल में सबसे ज्यादा अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ऐसे कौन से एलिमेंट है? देखो, क्रोमियम है, मोलिब्डेनियम है और टंगस्टन है. तीन एलिमेंट की बात करें, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन. These three elements which contain maximum number of unpair of electrons. क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हुआ? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये हुआ कि उसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होते हैं डी ऑर्बिट, एस ऑर्बिट में, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है. याद रखना है, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन, इसका अमंग द डिप्लॉक एलिमेंट सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है. चलो नेक्स्ट कंसीडर बात करेंगे अपन. दिस इज व्हाट कॉपर, Ag एंड AO. These three elements are variable electronic combination because of the stability. है ना? Half filled, completely full filled, half filled. D orbit completely full filled, S orbit half filled. D orbit completely full filled, S orbit half filled. That's why copper, Ag and AO are. This shows the variable electronic combination. Exception की बात करेंगे. यहाँ पे पैलेडियम एंड प्लैटिनम, ये दो एलिमेंट एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन याद रखना है. 6s1 5d9, 5s1 और 49. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन याद रखना है. उसके बाद कॉपर, Ag और AO, ये तीन एलिमेंट को क्वाइनेज एलिमेंट कहा गया है. कौन से एलिमेंट? क्वाइनेज. क्यों कहा गया है क्वाइनेज एलिमेंट? क्योंकि पहले जमाने में कॉपर का, तांबे का कॉइन, सोने का कॉइन, चांदी का कॉइन, है ना, पहले जमाने में इसका कॉइन बनाते थे, मतलब उसके कॉइन, है ना, एज अकॉर्डिंग टू कॉइन, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है क्वाइनेज एलिमेंट. व्हाई? दिस कंटेन इज शोर दिस इज अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्वाइनेज बनाने की वजह से इसका नाम दिया है क्वाइनेज एलिमेंट. देन नेक्स्ट वर्ड, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर प्रॉपर्टी. उसके पहले हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि साइज फैक्टर क्या है. साइज फैक्टर यहाँ पे स्कैंडियम से लेके झिल तक यहाँ पे क्या होता है, स्टेडीली इंक्रीज होता है. लेकिन हम बात करेंगे कि पहले जो तीन एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट है among the across the table, लेफ्ट टू राइट हम बात करेंगे. स्कैंडियम से जिंक तक, एटीएम से कैडमियम तक, लैंथेनम से मर्क्यूरी तक, इसका साइज क्या होता है? स्टेडीली इंक्रीज होता है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? कौन सा ऐसा फैक्टर इसको अलग करता है कि साइज इंक्रीज करता है और डिक्रीज होता है? अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि स्कैंडियम, अब यहाँ पे हमारे पास स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम है, स्कैंडियम में डी, यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियस है, इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में यहाँ पे डी ऑर्बिट है और यहाँ पे एस ऑर्बिट है ना, डी ऑर्बिट और एस ऑर्बिट. तो पहले देखो कि एस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स पहले ही फुलफिल है. स्कैंडियम ले लो, एटीएम ले लो या लैंथेनम ले लो, यहाँ पे एस ऑर्बिट कंप्लीटली फुलफिल है. अब यहाँ पे न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है. ऑफ कोर्स इस दोनों में क्या होगा, ये दोनों जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें अट्रैक्शन होगा. सो दैट व्हाट, द अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and what are electrons from s orbit. The attraction is takes place between the nucleus and electrons from the s orbit. जितना ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे होगा उतनी साइज उसकी कम होगी. तो याद रखना है अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. किसके बीच में? न्यूक्लियस
एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के और